गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हमारा इंटरैक्टिव क्वेश्चन है और मेरे पास ऑलरेडी क्वेरी क्वेश्चंस है। तो पहले मैं उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगी एंड देन आप अपने क्वेश्चन साइमल्टेनियसली चैट बॉक्स पे ऐड कर सकते हो या बाद में हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फॉर क्वेरी। विच एनिमल मिल्क इज बेस्ट? अगर आप एनिमल मिल्क की बात करते हैं सो ये श्रद्धा का क्वेश्चन है। इट इज काउ। Most people think cow milk is best, but it is not recommended child below 1 year as it causes anemia. So yes, below 1 year child cannot tolerate the milk, so नहीं देना चाहिए. Below 1 year, either breast milk or infant formula should only be given. It does not lead to anemia. It does not have iron. Milk is not a good source of iron. So cow milk does not lead to anemia. Uh, Also why, but it does have bad effect of intestine because the child cannot digest that milk. Why most women drinking milk having hormonal issues? Because आजकल जो cow milk आ रहा है, जो पैकेट में milk है, that is through the um, hormone injected cows, and they have been given the medicines to give more and more of milk, and because वो hormone injected होता है तो वो hormonal issues भी create करते हैं, not only in females, in males and children also. Okay. Next question is from Chaitanya. As we discussed in modern nutrition class, refined oil is not good, but at the same time, outside India, cold pressed oils are expensive. So, how to choose budget friendly oil at the same time healthy one too? So, budget friendly में अगर आप ये बोलते हैं, so if we are talking about refined oils, and if you're talking about cold pressed oil, the cost is more by what, 25 to 30%. Also rather than going on for medicines or going on for the later on some bills for the doctor, it is better to invest in your health. First thing. Second thing, mustard oil, olive oil, they are not very expensive. They are just 10 to 15% expensive than the refined oils. Okay, so सुरेश को सारी क्लास की वीडियोस चाहिए। सुरेश, आपको आई बिलीव मिल गई होंगी अभी तक। अनिल का क्वेश्चन है, डायबिटीज कंट्रोल करना, वजन कम या बढ़ाना? ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है अनिल मुझे आपका क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि डायबिटीज कैसे कंट्रोल करना है या वजन कैसे कम करना है या बढ़ाना है, ये आगे हम ओबेसिटी और डायबिटीज का टॉपिक करेंगे, तब हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। Next question is by Lovely. One should have balanced diet, but when we talk about weight loss, we say we should take less grains, more vegetable foods, and then how we will set the food exchange balanced diet. See, a balanced diet means आपकी diet में हर एक food group होना चाहिए. Okay, it should be cereals, grains, pulses, millets, then vegetables, fruits, सब कुछ होना चाहिए. But the quantity can be increased or decreased as per the person's requirement. Okay, so we will be understanding about food exchange when we will plan that. Next is by Neha. Please explain pyruvate. Pyruvate एक प्रोटीन मेटाबोलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट होता है। ग्लूकोज जब कन्वर्ट जस्ट ग्लूकोज जब कन्वर्ट होता है एटीपीज में, तो एक एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज मेटाबोलाइजेशन का और प्रोटीन मेटाबोलाइजेशन का पाइरूवेट होता है। मिताली का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फुल फैट टोन्ड डबल टोन्ड मिल्क, विच वन इज गुड फॉर हेल्थ? फुल फैट मिल्क, टोन्ड और डबल टोन्ड मिल्क में द ओनली डिफरेंस इज द फैट परसेंटेज। और डेफिनेटली जब फैट परसेंटेज चेंज होता है तो कैलोरीज भी चेंज होती है।
तो फुल फैट मिल्क में 4.5% फैट होता है, टोन्ड मिल्क में 3% होता है, डबल टोन्ड मिल्क में 1.5% होता है. Now it which one is good for health? It varies from person to person. अगर एक growing child है and the child is active, तो उनके लिए full fat milk is good. And if a person wants to lose weight and then the person has to drink double toned milk. And अगर एक person को normal है, maintain करना है, तो वो toned milk भी ले सकते हैं. Okay, the next question is by Yogita. Please suggest some book or trusted websites or further understand the topics. Yogita, I believe you will be getting the list of books. It is a list of 4 to 5 books. अगर अभी तक नहीं मिली है, you will be getting the list of the books. What salts and sugars are generally considered as a good option? Salts and sugars, they are not generally considered as salt and sugar as such is not healthy. They are not good. So उनका अगर हम alternatives देखें, so yes, jaggery can be there, khand can be there, सेंधा नमक can be there. But again, अगर हम diabetes perspective से या weight loss perspective से sugars को avoid करना चाह रहे हैं, तो जैगरी हो या ब्राउन शुगर हो या खांड हो, उसमें भी sugars और उसमें भी carbohydrates होते हैं. So there is no good option to be replaced. I would say हमें ये forgo करने चाहिए अपनी डाइट में. Salt में yes, सेंधा नमक is a healthy option, pink salt is a healthy option. Abdul says that we are going good and few more colorful image pictures are required. Your point is noted. Okay, Deepa का question है, in the study material in one point AI full form is given adequate intake, and in some other text it is written as advisory. They are both same. They mean both the terminologies mean the same. All recommended values are given for 14. I think ये question कल दीपा ने पूछा था. All recommended values are given for 14 plus age. So how about kids under the age of 14? How to calculate daily vitamin mineral requirements? We will be going through these RDS for all the age groups starting from an infant to old age in the coming up classes. So आपको वो समझ में आ जाएगा. Vitamin mineral भी उसमें दिया हुआ है. So we actually don't calculate. डॉक्टर्स मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स देते हैं, वो कैसे डिसाइड करते हैं? बेस्ड ऑन द सिम्टम्स दैट आर देयर, and obviously a medicine science is behind that which we are not learning right now. कुलदीप को क्लासेस हिंदी में सुननी है. कुलदीप, ज्यादा से ज्यादा हम क्लासेस हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. फिर भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो आज आप क्लैरिफाई कर सकते हैं. What kind of milk is good for children and old person? अगर तो हो ना प्योर ऑर्गेनिक मिल्क, जो आपको पता है कि ग्रास फेड काउ से मिल रहा है और उस काउ को कोई भी एंटीबायोटिक या हार्मोन इंजेक्शन नहीं दिए जा रहे, दैट मिल्क इज गुड. And if you get the category, children के लिए it can be full fat milk, and for older people it can be double toned milk, because as the age progresses the fat content should be less in the diet. If we complete protein from non-veg items, so why it should be good for taken less protein from that food? Because non-veg items proteins limited amounts में तो ठीक रहते हैं, but when we do overdo they are acidic in nature. So these were all the questions in the query form. I'll now take the chat questions and then I'll come to the hand raised ones. Concept of dietary fiber is not clear. So you just need to understand, Sonia, कि dietary fiber में क्या होता है basically. एनी फूड जिसे आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, जिसमें फाइबर, जिसे आप च्यू करने में ज्यादा टाइम लगाते हो, उसमें कंपैरेटिवली फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है. फाइबर बेसिक
हमारी डाइट में एक बल्क ऐड करता है, और फाइबर शुगर कोलेस्ट्रॉल फैट्स की रिलीज को भी स्लो डाउन करता है। तो फाइबर इज वेरी वेरी प्रोटेक्टिव अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। रिवर्सल में भी ये बहुत हेल्प करता है, ये कॉन्स्टिपेशन और गट इश्यूज में भी हेल्प करता है, बिकॉज इट रिलीजेस अ लॉट ऑफ फूड फॉर गुड बैक्टीरिया दैट इज देयर इन आवर गट। ओके, I hope the sound is okay for the Zoom user. Almond, soya, coconut milk are available these days and are said to be good substitute. However, they come in Tetra Pak and they contain preservatives. So we can prepare these milks at home. We should not be relying, हमें बिल्कुल भी rely नहीं करना चाहिए that those milks on Tetra Packs. हम बहुत easily इन मिल्क्स को घर पे भी बना सकते हैं। आप YouTube में just type the recipes and they are very quick. ओके, सो आमंड मिल्क की तो मैं अभी ही आपको बता सकती हूँ। आपको क्या करना है, आमंड्स, टेक अ फिस्ट फुल ऑफ आमंड्स और 10 to 15 आमंड्स, उनको रात को पानी में सोक करके रख दो। मॉर्निंग में उनकी पील रिमूव करके 1 ग्लास पानी में सोक करके रखो। मॉर्निंग में उनकी पील रिमूव कर दो एंड blenderize it in the mixture. And if you want, you can sieve it. If you don't want, you don't sieve it, and your glass of almond milk is ready. It is as simple as that. Likewise, हम सोया और कोकोनट मिल्क भी घर पे ही बना सकते हैं। What about milk powder? Milk powder एक डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट होता है, उसमें fortify किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। इट इज गुड इन प्रोटीन्स, इट इज गुड इन कैल्शियम, बट ज्यादा अमाउंट में मिल्क पाउडर हमें डाइट में नहीं लेना चाहिए, वो कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। कल वाले नोट्स नहीं मिले हैं, मिल जाएंगे कुलदीप, एक बार चेक कर लो कहीं आपने मिस तो नहीं कर दिए। As you said, preservative milk is not good, then what about almonds? I just mentioned that, Akanksha. And you, am I audible for everybody? Okay. Yes, I believe so. Another question is, which one is good? Air fryer, OTG, microwave? See, सब में ही high amount of heat is given to the food product for cooking. बहुत high radiation से cooking होती है, so nutrient losses सब में होते हैं, but the safest is OTG. BMR range 45 to 70%, which is better for daily functioning. Higher the BMR, it is better. Stuck weight which is not reducing, also suffering from arthritis, वो what should not be consumed? So कैलाश, हम अभी weight loss diet पे obesity पे आएंगे, and throughout the topic we will be talking about stuck weight. और arthritis एक inflammatory condition है जहाँ पे हमें ज्यादा alkaline foods लेने चाहिए और acidic foods नहीं लेने चाहिए. So during the course you will understand कि हमें कौन से foods लेने चाहिए, कौन से foods नहीं लेने चाहिए. We are not getting sufficient amount of protein from diet, then definitely we can go for a supplement. What about camel milk? It suits someone, it doesn't suit some people. प्लीज इन हिंदी साधना, सी हमारे बैच में हर तरीके के लोग हैं, कुछ को हिंदी समझ में ज्यादा अच्छे से आती है, कुछ को इंग्लिश समझ में आती है, सो मैं दोनों लैंग्वेजेस इक्वली यूज करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सेंधा नमक डज नॉट हैव आयोडीन, सो इज इट गुड फॉर हाइपोथायराइड पेशेंट? हम मिक्सिंग कर सकते हैं, सेंधा नमक और आयोडाइज नमक को हाफ हाफ क्वांटिटीज में ले सकते हैं। सोया मिल्क इज गुड, बट थायराइड पीपल सोया मिल्क नहीं ले सकते। Is sprouts a wholesome food? Yes, they are very good in proteins. उनमें good carbs होते हैं और वो nutrient absorption को भी increase करते हैं। पनीर में भी it has a good protein with a combination of fat. Sweet potatoes are very very healthy with good carbs in them. So we cannot call them as a wholesome food, but ये अपने ही perspective में healthy sources हैं, but they have to be combined with other things to make sure कि हम उनको सारे nutrients meet कर रहे हैं. Pink salt and सेंधा नमक, I just Avirat told this answer.
Is RO water or AquaGuard water giving us adequate minerals or we are getting deficient? We are not getting because as such water में बहुत ज़्यादा minerals नहीं होते हैं. Majority of the minerals हम अपनी diet से लेते हैं. Eat flaxseed sugar beets. Are flaxseed sugar beets soluble or insoluble fiber? Flax seeds are soluble and sugar beets are insoluble. Which is more nutritive, normal on soaked almonds? Soaked almonds ज़्यादा nutritive है. Is it okay to have homemade cold coffee along breakfast or after a gap? Always after a gap. Which cooking oil is best for regular use in countries like UAE? It can be mustard. It can be mustard. It can be olive. मैम अगर किसी बच्चे का अच्छी डाइट ली, कुलदीप आपका थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा, आपका हैंड रेज है, मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ. प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट DMR which we will be doing mostly on Monday's class. For a diabetic patient, what kind of foods can be given? डायबिटीज में एक कॉन्सेप्ट होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, लो एंड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स. तो हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स देने होते हैं. वो कौन से होते हैं विच वी विल बी अंडरस्टैंडिंग जब हम डायबिटीज टॉपिक करेंगे. इज टपोका स्वीट पोटैटो गुड फॉर डायबिटीज? once in a week can be given. What food should be avoided in hypothyroidism, which we will be covering in the topic, but majorly abhi ke liye I would say soy foods. If a person doesn't have milk and milk products, what are the substitutes for that? So basically milk हम calcium proteins के लिए लेते हैं. तो calcium and proteins हमें बहुत सारे foods में से मिलते हैं, which I have already told you. We go into the intuitive and find out the nutrients. Mustard oil use कर सकते हैं. It is not hot. You burn it. You are going to use very little quantities for cooking. ठीक है, हम बहुत ज्यादा frying foods वैसे भी recommend नहीं करते हैं. So minimal oil की usage cooking में use कर सकते हैं mustard oil. Yes. Zoom user. First of all, I please rename your. Try to rename yourself. आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. Zoom user. कुलदीप आप अपना क्वेश्चन पूछिए. मैम अगर गुड मॉर्निंग मैम. हाँ जी, गुड मॉर्निंग कुलदीप. मैम अगर किसी बच्चे का अच्छी डाइट लेने के बावजूद भी वजन अगेन ना हो रहा तो उसका क्या कारण हो सकता है? कुलदीप ये तो डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा. उनको थोड़े से टेस्ट करवाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो अभी जो हम ये कोर्स कर रहे हैं ना, ये सबके लिए है. कोर्स में हम डायग्नोसिस नहीं कर सकते कि क्या प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है वो पता होगा तो हम बता सकते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम में हमने ये खाना खाना है. पर क्या प्रॉब्लम है वो मैम डॉक्टर का काम है. जिमें ना बच्चे ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ हाँ हाँ ਤੇ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਖਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ. हाँ हाँ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਟ ਦਾ ਦਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆਂਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਾਈਟ ਮਤਲਬ ਕਿ weight gain ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ. ਉਹਦਾ ਲਿਵਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ. ਲੀਵਰ ਮੈਮ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਵਰ OTP ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ लीवर होता जी. तो बेसिकली लीवर में प्रॉब्लम होती है तभी ये स्किन इश्यूज होते हैं, या किडनी में इश्यूज अगर कुछ हो तो हो सकते हैं. एक बार आप उनका ब्लड प्रोफाइल करवाओ, डॉक्टर से बात करो, और जब हमें एक प्रॉब्लम का पता चलेगा तो ही हम सॉल्यूशन बता पाएंगे. आप दलिया मिलेट्स ये सब दे सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्किन इश्यूज को लेके या एक्जिमा को लेके. बस जब आपके अगर एक्जिमा है, ड्राई स्किन है, तो आपने बहुत ज्यादा मिर्चों वाला या स्पाइसेस वाला खाना नहीं बच्चे को देना है. बहुत ज्यादा ना गर्मी मतलब कि गर्मैश ज्यादा हो जाती है, मतलब कि कोई भी चीज गर्म खावे ना हीटअप हो जाती है बहुत ज्यादा.
हाँ, तो आपने उनको ज्यादा से ज्यादा पानी, ठंडी चीजें देनी है। जैसे अब मौसम बदल रहा है, आप उनको दही का मट्ठा दे सकते हो, चिया सीड वाला पानी दे सकते हो, नारियल पानी दे सकते हो, ये ठंडी चीजें उनको ज्यादा दो। और तुलसी के पत्ते उनके खाने में डाल के, वो उनको फायदा करेगा। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਿਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। हाँ, कम देनी है। ਓਕੇ। Zoom user, can you please switch off your video and rename yourself and then please ask your question? You should be sitting in the class rather than lying down. Yes, Ruchi, please ask your question. हेलो। हाँ जी, हाँ Ruchi, जी, please. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. हाँ मैम, एक्चुअली आई हैड वन क्वेरी, लाइक you told us कि सेंधा नमक is better. Yeah, सेंधा नमक is better than normal salt, but Yeah. it doesn't have iodine. yeah. So is it good for hypothyroidism patients also? See, as I just told when I was answering the question also, hypothyroidism में we take a blend of two salts. One is सेंधा नमक and the other one is the normal salt. So हम दोनों को mix करके लेते हैं। वो कितना लेंगे, क्या quantities में लेंगे, which we will be learning when we will be doing the CPD topic. उसमें मैं आपको salt calculation सिखाऊंगी। Otherwise, is it good for like everyone other Seindha is other than actually- hypothyroidism patient? Yeah, it is to be taken by everyone. One should switch to Seindha Namak. It is very, very healthy. It is low in sodium. So one should, or a normal individual should also take a Seindha Namak in the diet. Okay, thank you. Yes, Satinder, please ask your question. Yes, ma'am. Good morning. Good morning. मैम इट्स वैल्यूएबल सारी चीजें। मेरे मैम टॉपिक एक्चुअली छूट गए थे पहले, मैंने कल ज्वाइन किया है, तो मुझे वो अच्छा। कैसे मिलेंगे? आपको सतिंदर, जैसे हमारी ये क्लास होती है ना, हर एक क्लास हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको उनकी रिकॉर्डिंग्स आपकी मिल जाएगी और आपको उनके पीडीएफ जो टॉपिक्स हैं वो भी मिल जाएंगे। आप एडमिन से एक बार वो अपने आप ही वैसे तो भेज देंगे, बट अगर आपको आज नहीं मिलते हैं, आप एक बार एडमिन को रिमाइंड करवा दीजिएगा। जो भी आपकी क्लासेस मिस हुई है उन सबकी रिकॉर्डिंग्स और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। एक बार आप रिकॉर्डिंग सुन लेना सारी क्लासेस की। इन केस आपको रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी कोई डाउट्स होते हैं, फिर आप मंडे को पूछ सकते हैं। और जो बुक्स रिकमेंड की आपने वो भी पता चल जाएंगी मुझे? वो भी आपको सारे मैसेजेस आ जाएंगे। मैंने रिकमेंड अभी तक कोई बुक की नहीं है। आपको आरोग्यम इंस्टीट्यूट की तरफ से ही बुक रिकमेंडेशन के नेम्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम। आकांक्षा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Ma'am, actually, I want to ask that how can we increase our BMR to lose weight, especially in PCOS patients where losing weight is really difficult for a person. So, how can we increase the BMR? बीएमआर इंक्रीज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आई एम गोइंग टू कवर दिस टॉपिक इन ओबेसिटी, बट सिंस यू हैव आस्क्ड, सो आई जस्ट टेल यू देयर आर सर्टेन थिंग्स इन आवर रेजीम जो हमें ध्यान देनी चाहिए। डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, वाटर इनटेक, स्लीप साइकिल and stress maintaining. So when we are talking about BMR, और अगर हम किसी भी डिजीज को मैनेज करना चाहते हैं, किसी भी इशू को मैनेज करना चाहते हैं, ओनली डाइट इज नॉट गोइंग टू वर्क। वी हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड ऑब्वियसली अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तभी हम एक कंडीशन को रिजल्ट ला पाएंगे या बेटर कर पाएंगे। सो जब हम बीएमआर की बात करते हैं, सो BMR के लिए there are certain things, small frequent meals, SFM बोलते हैं, small frequent meals, ये होनी चाहिए। Then we should be having metabolism boosting foods in our diet like
certain जो हमने कल tepid water के बारे में किया था, those concoctions having ajwain water, jeera water, cinnamon water, apple cider vinegar, foods that are rich in fiber, ये सारी चीजें like apple है, guava है, pineapple, ये सारे foods जो हैं ये हमारा metabolism boost करते हैं. So the more fiber rich foods we have and the more concoctions we have, जैसे cinnamon water या lemon water लिया, ये हमारे food diet में चीजों को BMR को या हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं. Likewise, physical activity. So the more the person is active, the BMR is going to boost. So कभी-कभी क्या होता है, people are sedentarily active. Sedentarily active का क्या मतलब होता है? This should be first of all avoided. So sedentarily active मतलब morning में 1 घंटा exercise की and then entire day they are sedentary. उससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं होता है. इससे बेटर है आप थ्रू आउट द डे एक्टिव रहो. दैट इज मोर बेनिफिशियल देन जस्ट डूइंग 1 hour ऑफ एक्टिविटी एंड सिटिंग एट वन प्लेस फॉर द एंटायर डे. सो जितना ज्यादा आप थ्रू आउट द डे एक्टिव रहते हो उतना ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है. लाइकवाइज वाटर इनटेक, मैंने कल आपको वाटर इनटेक की कैलकुलेशन बताई थी. अगर आप एडिक्वेट वाटर लेते हो अपनी डाइट में और अगर आपकी रिक्वायरमेंट लेट्स से 2.5 liters है and you increase it to 3 liters and take it, that is absolutely good. So this is going to boost your metabolism. Adequate sleep, 7 to 8 hours of sleep must be there. और ये sleep जो है वो sound sleep अगर होगी, that is going to boost your metabolism. And stress अगर होगा तो मेटाबॉलिज्म लो होगा. स्ट्रेस को मेंटेन करना है, दैट आल्सो बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म. सो दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच हेल्प इन बूस्टिंग मेटाबॉलिज्म. सिर्फ हम डाइट पे फोकस करेंगे, बाकी चारों चीजों को इग्नोर करेंगे तो द थिंग्स विल नॉट वर्क इन आवर फेवर. Okay, ma'am. And one more thing, if the patient is having anxiety issues, so how can we manage stress on them? Patient is having which issues? Anxiety issues. एंजाइटी इश्यूज, तो उसमें हमें बेसिकली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्लेज मोर रोल. एंजाइटी डिप्रेशन में फूड का रोल इतना ज्यादा नहीं होता है. देयर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन वो ज्यादा वर्क करता है. Okay, ma'am. Okay, Shilpi, please ask your question. Yeah, good morning. Good morning. Actually अभी आपने salts के बारे में बताया जी. and you told that pink salt is more good. So I told सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, काला नमक ये सब अच्छे हैं. मगर काला नमक का जो आयोडीन होता है that is very high. बट हम काला नमक कुकिंग में यूज नहीं करेंगे ना, हम थोड़ा थोड़ा कहीं पे यूज कर सकते हैं. मेजर सॉल्ट विल बी सेंधा नमक इन द कुकिंग. Pink salt and kala namak, pink salt and kala namak is almost same. We will use it very seldom, maybe in sometimes in buttermilk or sometimes in few things, not for cooking. So pink salt also we should not use in cooking or use in very moderate form. Moderate amount. जैसे suppose अगर अभी question पूछ रहे थे hypothyroidism का, so hypothyroidism है तो rather than using the free flowing salt, we can combine सेंधा and pink salt and use them in combination. Okay, and what about sea salt? Sea salt normally हम use कर सकते हैं, but the iodine content, sorry, the sodium content is the best in सेंधा नमक. Sea salt में भी सोडियम थोड़ा सा ज्यादा रहता है. Okay, so we can mix सेंधा नमक and pink salt. Yes, for hypothyroidism, जहाँ goiter है, आयोडीन की डेफिशिएंसी है, बट अगर जहाँ आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं है, then we should not mix the pink salt as well. We just Okay. for जो नॉर्मल हम लोग जैसे रोज का जो हम खाना बनाते हैं, so we should not use only pink salt. yes, it is also high in sodium. Okay. It is And- better than the normal salt, but it has more sodium than the सेंधा नमक. Okay. One more question about fruits. Sorry, Yeah. about milk. Yes. What about camel milk?
See, I just answer that question in the query form also. कुछ लोगों को ये digest होता है, कुछ लोगों को digest नहीं हो पाता है. So it varies from individual to individual. जब हम बात करते हैं digestibility की. But अगर हम nutritive value की बात करते हैं, तो nutritive value में it is a good milk source where we are getting good protein from them. Energy values is somewhere 70 कैलोरीज हमें अगर नॉर्मल मिल्क से मिलती है 100 ml में, camel milk gives you somewhere around 40 to 50 calories, so little low calorie, and fat percentage इसका 2% रहता है as compared to the normal milk, जो अगर हम full cream लेते हैं तो 4.5 होते हैं, whereas camel milk will have 2% of fat. That. Okay. And about fruits, एक आपने अपनी क्लास में बोला था we should have apple as a whole, not apple juice. Yeah. So what is the difference? Number one, number two, बहुत सारे fruits जो होते हैं वो alkaline होते हैं, बहुत सारे fruits acidic होते हैं. तो is it good to have like watermelon? मतलब खाने के बाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक रिलैक्सिंग स्मूथिंग फीलिंग आती है, बट इट इज एसिडिक इन नेचर. सो जो दूसरे मेलन फ्रूट्स हैं लाइक स्वीट मेलन, रॉक मेलन, वो भी क्या एसिडिक होते हैं या, और यू विल टेल लाइक व्हाट इज about fruits later. So coming to your question of the what was the first question related to fruit, Shilpi? हम लोगों को कोई भी जो फ्रूट है वो पूरा खाने के लिए आपने बताया एप्पल वर्सेस एप्पल जूस. बिकॉज जब भी हम किसी स्पेशली फ्रूट्स को जब हम प्रोसेस करते हैं, बेशक वो हम घर पे ही जूसर में प्रोसेस कर रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट लॉसेस होते हैं, वन थिंग. एंड द मोमेंट वी एक्सपोज द फ्रूट, हमें कभी भी फ्रूट काट के नहीं रखना चाहिए. अगर हम उसके 100% न्यूट्रिएंट्स चाहते हैं, जैसे ही काट लो इमीडिएटली खाओ. It should not be left for half an hour and then eaten. So जब आप फ्रूट का जूस बनाते हो, न्यूट्रिएंट लॉसेस उसमें से होते हैं. सेकेंडली फाइबर लॉस होता है. Okay, so and it is always more satiating. जब आप फ्रूट ले रहे हो तो मेन थिंग इज हम अपनी कैलोरी ले रहे हैं, बट सेटिस्फाइंग या फिलिंग विल बी ईटिंग अ फ्रूट rather than having a juice out of that. So 3 reasons why we should not be having a juice and we should eat the whole fruit. Yes, for a younger children, for old age people, definitely हम juice के लिए जा सकते हैं जहाँ chewing is the problem. Coming to acidity and alkalinity of fruits, फ्रूट्स को जैसे मैंने बताया था कि हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं और हम नट्स एंड सीड्स के साथ कंबाइन करते हैं. इवन इफ अ फ्रूट इज एसिडिक, और जब हम नट्स और सीड्स के साथ कंबाइन करके हम फ्रूट को लेते हैं, इट बिकम्स अ लिटिल न्यूट्रल टू लो अल्कलाइन पीएच थिंग. अगर अल्कलाइन है, इट इज ऑल द मोर बेटर. सो जब हम गट इश्यूज करेंगे, हम एसिडिक और अल्कलाइन पीएच के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर कोई मील, इट इज नॉट अबाउट ओनली फ्रूट्स, अगर हम कोई मील ले रहे हैं जो एसिडिक है, इट कैन बी अ फ्रूट, इट कैन बी वेजिटेबल, इट कैन बी एनीथिंग, हमें उसको हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं और उस मील को अल्कलाइन बना सकते हैं. दिस वी विल बी लर्निंग व्हेन वी विल बी डूइंग द गट इश्यूज. Okay, and what about nowadays slow juicers are very in fashion. So जैसे आपने बताया कि जो जूसर है उसमें उनकी जो प्रोसेस हो जाता है तो न्यूट्रिएंट वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, बट जैसे जो स्लो जूसर हैं दे आर गारंटिंग दैट फाइबर इज मोर, लाइक मैक्सिमम फाइबर उसमें आ जाता है. फाइबर मोर होगा, बट स्टिल व्हेन द थिंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इन द जूसर, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ दैट फ्रूट. So juices are never be on a upper hand than a whole fruit in terms of nutrient content. Okay, and what about vegetable, like कोई भी जो Vegetable juices can be taken because vegetables की oxidation नहीं होती है, तो vegetables आप ले सकते हैं जूस की फॉर्म में. और ऐसा भी हम लोग नहीं कर सकते हैं कि हमने बस जैसे जूस निकाला और उसी समय तुरंत पी लिया, दैट इज आल्सो नॉट एडवाइजेबल. No. Okay, thank you. Yeah. So what I mean to tell is कि हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स किससे मिलेंगे.
आई एम नॉट सेइंग कि जूस में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट अगर आप फ्रूट ले रहे हो और उसमें 10 on 10 बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो जूस में हमें 7 on 10 या 8 on 10 बेनिफिट्स मिलेंगे. सो व्हाई टू कॉम्प्रोमाइज? ओके, यस दीपिका, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग दीपिका. Ma'am, my question is the same which I've written in the chat box, but I didn't have the cleared answer, so I'm repeating my question. प्लीज गो अहेड. Ma'am, it's about the sprouts. Ma'am, my question was ki usually we have talked about that proteins should be eaten with some combination to complete its amino acid, right? So Yeah. my question is, what sprouts we eat as a alone, matlab without having something else with it? So will it be complete combination of amino acids, or we need to add something? या सो देखो, जैसे यू नो स्प्राउट्स ले रहे हैं हम, सो स्प्राउट्स दे डू हैव प्रोटीन्स, एंड स्प्राउटिंग से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बेटर हो रही है, सब कुछ है, बट वी नीड टू कंबाइन स्प्राउट्स विद वेजिटेबल्स. सो इसीलिए हम स्प्राउट चाट कभी कभी बनाते हैं. वी ऐड क्यूक्यूम्बर्स, टोमेटोज और स्टफ लाइक दैट. जस्ट एडिंग दोज वेजिटेबल्स will make it a complete meal. Okay. Okay. And ma'am, same thing for paneer. Ma'am, paneer we can have it say like that as a snack for some time, or we have to add something with that to complete it. See, paneer आप लेते हैं as a snack, okay, but whenever I plan diet, I make it sure that पनीर के साथ I am adding, it can be a dip, it can be a mint chutney, pudina chutney, coriander chutney, कोई chutney which is again made from green leafy vegetables. So Yeah, ma'am, that is fine. हाँ. No, so ma'am, it is not green leafy compulsory to add. vegetable के साथ हम वो लेंगे तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन्स हमें अवेलेबल हो जाएंगे. मैम, उसके साथ कार्ब्स ऐड करना कंपलसरी नहीं है ना, कि मतलब जब कार्ब्स, नो, दैट इज नॉट नेसेसरी. ओके, या, थैंक यू मैम. लाइकवाइज फॉर योर स्वीट पोटैटो का भी थर्ड ऑप्शन था, उसे भी हम किसी चीज के साथ, हमें किसी को भी कंबाइन करना है, लाइक सीरियल पल्स और सीरियल वेजिटेबल और मिल्क वेजिटेबल, मिल्क पल्स, मतलब हमें इनको क्रॉस कॉम्बिनेशन करना है, एंड देन दे विल बी कंप्लीट प्रोटीन्स. मैम, सेम विद स्वीट पोटैटो, इफ वी ऐड कैरेट, कैप्सिकम, देन इट विल बी कंप्लीट. एग्जैक्टली, यस. ओके, थैंक यू मैम. यस, साधना, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. मेरा क्वेश्चन एक तो पहले प्रोटीन को लेकर था, जैसे कि हम लोगों ने भी बात किया कि जैसे 1 ग्राम या 1.2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से लेना चाहिए, तो क्या ये कैलकुलेशन बच्चों पर भी लागू होता है? नहीं, बच्चों पे लागू नहीं होता है, 10 साल से कम के बच्चों पे तो नहीं. मैं आपको हमारी जो मंडे को क्लास होगी उसमें हम RDA का टॉपिक करेंगे, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जिसमें मैं आपको एक चार्ट दूंगी जिसमें बच्चों की रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं. फिर हमारा एक दूसरा टॉपिक है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, उसमें भी हम RDA आपको बताऊंगी कि बच्चों की कैलकुलेशन में हमें कितना प्रोटीन, कितना एनर्जी लेना होता है. ओके. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कि मैंने ये सुना है कि सेंधा नमक और पिंक सॉल्ट लेने से जो BP लो वाले पेशेंट होते हैं उन्हें ये रेकमेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शायद ब्लड को आई थिंक गाढ़ा बनाता है. नहीं, ऐसा नहीं है. सेंधा नमक में सोडियम कम होता है, ठीक है. सोडियम जो है वो BP को BP जैसे हमारी डाइट में हमें 1500 मिलीग्राम सोडियम चाहिए होता है हमारे को. हम सबकी रिक्वायरमेंट बच्चे से लेके बूढ़े तक की नॉर्मल रिक्वायरमेंट 1500 मिलीग्राम है, ठीक है. जब किसी का BP कम होता है, हम सेंधा नमक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सेंधा नमक में सोडियम ऑलमोस्ट जस्ट अ सेकेंड. So if I tell you सेंधा नमक में 100 grams, what is happening? 100 grams में सेंधा नमक को बोला जाता है लोना, लो सोडियम सॉल्ट. उसमें 20,000 मिलीग्राम सोडियम होता है, whereas अगर हम 100 grams नॉर्मल सॉल्ट लेते हैं या पिंक सॉल्ट लेते हैं, उसमें 38,400 मिलीग्राम सोडियम होता है, विच इज ऑलमोस्ट डबल, ठीक है. नाउ जब BP किसी को होता है तो BP में हमें सोडियम कम देना होता है, ओके, क्योंकि सोडियम अगर हमारी डाइट में ज्यादा होता है तो BP और ज्यादा बढ़ जाता है. सो तब हम रेकमेंड करते हैं कि हमें लो सोडियम सॉल्ट लेना चाहिए, हमें
सेंधा नमक जैसे लो सोडियम सॉल्ट लेने चाहिए। बट अगर किसी का बीपी लो जा रहा है तो हमें उनका सोडियम बढ़ाना होगा, उस केस में हम सेंधा नमक नहीं देंगे, उस केस में हम नॉर्मल सॉल्ट या पिंक सॉल्ट देंगे जिसमें सोडियम ज्यादा होता है, ताकि उनका बीपी नॉर्मलाइज हो सके। ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। नारायण, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर आपकी आवाज एको हो रही है। नहीं, मैंने बिल्कुल चालू किया है। हेलो, हाँ जी, अभी अब सुनने में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक है मैडम एक्चुअली अभी थोड़ा डायबिटिक चालू हुआ मेरा, जी। अभी शुगर कम खाना है सब लोग बोल रहे हैं, तो मैंने वो शुगर फ्री आते हैं ना, वो यूज करता हूँ। डेली 3-4 चाय तो हो जाती है, तो वो कितना एडवाइजेबल है आपके हिसाब से? शुगर फ्री के वो जो छोटी छोटी टैबलेट आती है, हाँ बिल्कुल। वो नहीं लेनी चाहिए, उससे बेटर है आप स्टीविया ले लीजिए। शुगर फ्री के लंबे समय कंज्यूम करने के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, सो शुगर फ्री ना लेके स्टीविया बहुत ही ज्यादा सेफ होती है और वो नेचुरल होती है। जैसे फ्रूट्स में अपनी नेचुरल मिठास होती है, वैसे स्टीविया में भी अपनी ही नेचुरल मिठास होती है। सो स्टीविया इज मच मोर सेफर देन शुगर फ्री। स्टीविया क्या कहाँ से मिलता है वो? मुझे कुछ मार्केट पता से नहीं। मिलेगा आराम से, केमिस्ट शॉप से, मार्केट से आपको मिल जाएगा। आप इसमें डाल देंगे क्या चैट बॉक्स में? और दूसरा ये पूछना था, नॉर्मली हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं ना, तो चाय जी कॉफी लेते ही हैं। कल ऐसा जी। बताया था कि चाय और कॉफी नहीं लेनी चाहिए, उसके हिसाब से खाली पेट नहीं लेनी चाहिए और नाश्ते के साथ नहीं लेनी चाहिए। तो क्या दूध का मतलब अगर आदत है समझो, वो हल्दी का दूध चलेगा उसके साथ? चलेगा। और अभी मेरे को बाकी याद नहीं आ रहा, फिर बाद कोई में बात पूछ। नहीं, आपको आएगा, आप फिर हैंड रेज कर लीजिएगा। ए जलान, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नलिनी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Yes, namaste, ma'am. नमस्ते नलिनी। Ma'am, I want to ask, in pregnancy, if there is a low birth weight, fetus का low birth weight रहा अगर fetus का, तो उसके लिए क्या recommend कर सकते हैं डाइट? प्रेगनेंसी डिलीवरी हो गई और बच्चे का वजन कम है? No, ma'am. हाँ। Before pregnancy. Sorry, before delivery. 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है और अल्ट्रासाउंड में पता चला है कि बच्चे का वजन कम है? Ma'am, say in second trimester. 2nd ट्राइमेस्टर चल रहा है और बच्चे का वजन कम है जितना होना चाहिए? हाँ हाँ। तो सी अगेन, क्यों कम है, क्या रीजन है जो कम है, वो जानना जरूरी है। डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेंट। क्या वजह है कि बच्चे का वजन कम है? मैं ऐसे ही बोल नहीं सकती कि आप ये ले लो। मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज है, मदर का बीपी ज्यादा है, कम है, व्हाट इज द इशू? आई नीड टू नो दैट टू आंसर द क्वेश्चन। वजन कम होने के 10 से 15 रीजन हो सकते हैं और वो 10 से 15 रीजन के अलग अलग सॉल्यूशंस होंगे डाइट के, ठीक है? सो आई एम नॉट हेयर टू डायग्नोज कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? आई एम हेयर टू गिव यू द नॉलेज एंड आई वांट यू टू लर्न कि हम कैसे एक अगर डायग्नोसिस हमारे पास हो तो उसका सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइट। ओके, सो नलिनी यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक विद क्या डायग्नोसिस है। आप मुझे कोई भी, इट इज नॉट नलिनी, आप कोई भी मुझे बोलेंगे ये प्रॉब्लम है, तो आई एम नॉट अ डॉक्टर हेयर टू टेल यू कि ओके दिस इज द सॉल्यूशन। पद्मावती, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Good morning. My question is antibodies जैसे बॉडी में हो जाए तो उनको नॉर्मल करने के लिए क्या डाइट या क्या करना चाहिए? एंटीबॉडीज तो किसी चीज के अगेंस्ट बनती हैं। ओके। सो यू नो लाइक अगर जैसे अभी हमारे
लाइक कोविड-19 था, सो Okay. कोविड-19 की सब लोगों ने वैक्सीन ली, तो वो जी। वैक्सीन के अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, ताकि जब वो दोबारा वायरस आए तो हमारी बॉडी में उसे फाइट करने के लिए पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो। Okay. सो दिस इज एंटीबॉडीज। तो उसके लिए कोई डाइट डजंट प्ले एनी रोल, एंड वो Okay. एंटीबॉडीज एक रिस्पॉन्स टू सम इन्फेक्शन और वायरस बॉडी में बनती है नेचुरली। ओके, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन है या कोई एक्सरसाइज, या जैसे आप बता रहे हैं कि मेडिटेशन या कुछ और भी है? एक्चुअली एंटीबॉडीज, मेरे को आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। एंटीबॉडीज है तो क्या दिक्कत है? जैसे कोई पेशेंट है, जैसे जी। पेशेंट है, उनको ये बीपी और शुगर और काफी ब्लड की भी प्रॉब्लम हुई थी, ब्लड की कमी भी हुई थी, तो उनकी, हाँ, तो उनमें एक डायग्नोज हुआ कि एंटीबॉडीज अभी तक ज्यादा हैं, जिसकी वजह से थोड़ी मेडिसिन कम है। तो एंटीबॉडीज को नॉर्मल करने के लिए कुछ देयर इज नो ऐसा है? दैट रोल्स प्लेज, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन कि ब्लड को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए? या इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम काफी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि बेस्ट कॉन्कॉक्शन जो वर्क करती है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ये वैसे मैं आपको कवर करूंगी इम्यूनिटी, हमारा कैंसर और एड्स जब हम टॉपिक करेंगे तो हम डिटेल में इम्यूनिटी रिलेटेड फूड्स करेंगे, बट वन फूड दैट रियली वर्क्स वेल और जो हम किसी भी उम्र में किसी को भी दे सकते हैं, वो है ये कॉन्कॉक्शन। सो टर्मरिक आपने लेना है 1/4 चम्मच, और पानी में भी कर सकते हैं इसे, दूध में भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से बॉईल कर लेना है, जिसमें भी आप लेते हैं, पानी या दूध में। टर्मरिक कच्ची हल्दी होनी चाहिए, या नॉर्मल जो मार्केट में पाउडर मिलते हैं वो नहीं। कच्ची अच्छा। हल्दी को ग्रेट कर दो और उसे अच्छे से पानी में या दूध में, जिसमें भी आप देना चाहते हो, उसमें बॉईल कर लो। बॉईल करने के बाद चुटकी भर ब्लैक पेपर उसमें ऐड करो, और कोई भी फैट सोर्स, इट कैन बी half a spoon of desi ghee, it can be half a spoon of cold pressed coconut oil or any cold pressed oil, ठीक है। देसी घी बेस्ट रहता है। ये concoction works great for immunity. Okay, so a little warm and then add turmeric or black pepper, pinch of black pepper and fatty salts, fat salt. Yes. Okay, thank ठीक है। you. तो ये आपको हर रोज लेना है, 2-3 दिन लेंगे तो आपको कुछ भी फर्क नहीं दिखेगा। यू नीड टू टेक इट फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। आपकी इम्यूनिटी, जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं, इम्यूनिटी बेटर होती है। Okay, thank you. Okay, most welcome. Vinitha, please ask your question. Hello, good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, can you tell me about GFCF diet? Which diet? Gluten-free, casein-free diet. Okay, so and for whom it is recommended? Okay, so देखो, सबसे पहले ग्लूटेन फ्री और केसीन फ्री डाइट जो है, इट मीन्स दैट द पर्सन हैज सम एलर्जीज टुवर्ड ग्लूटेन एंड द पर्सन मे हैव सम एलर्जीज टुवर्ड्स केसीन, ठीक है। केसीन क्या होता है आपको पता है? मिल्क प्रोडक्ट्स। हाँ, सो मिल्क में एक प्रोटीन होता है जिसे हम केसीन बोलते हैं, और ग्लूटेन क्या होता है? ये भी एक प्रोटीन होता है जो व्हीट प्रोडक्ट्स में फाइंड किया जाता है। सो हम ग्लूटेन फ्री और केसीन फ्री डाइट उन लोगों को देते हैं जिन्हें व्हीट या आटे वाली चीजों से एलर्जी होती है और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, और बेसिकली इन दोनों कंडीशंस का नाम होता है सिलियाक और लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। सो ये दोनों अगर किसी सिलियाक डिजीज एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये दोनों डिजीज अगर किसी को होती हैं तो हम ये ग्लूटेन फ्री और सिलियाक फ्री डाइट देते हैं। यूजुअली इस डाइट में हम सारी की सारी व्हीट प्रोडक्ट्स माइनस करते हैं, जैसे कि आटे से बना हुआ दलिया, मैदा, सूजी, पोहा, जो भी आटे से बनता है हम उन सब चीजों को माइनस करते हैं। सब के सब मिल्क प्रोडक्ट्स हम माइनस कर देते हैं, जैसे कि काउ मिल्क से बना हुआ
दूध, दही, बटर, ये सब हम माइनस करेंगे, जो भी चीजें मिल्क से बनी है. ओके, सो एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी गिवन टू दैट पर्सन. Okay. And second, ma'am, second question. जी. ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी के कारण ये स्किन पिगमेंट, ब्लैक पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल, अदर देन द जेनेटिक प्रॉब्लम और स्लीप इश्यूज हो सकते हैं. विटामिन सी, विटामिन ई की डेफिशिएंसीज की वजह से स्किन इश्यूज लाइक पिगमेंटेशन हो सकती है. ओके मैम, थैंक यू. कुलदीप, हाँ जी, अपना क्वेश्चन पूछिए. मैम जैसे ना हमें मिल्ट के आटे खाते हैं, जैसे जौं ਦਾ ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਸਵਾਗ ਦਾ, ਕੰਗਣੀ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਨਾਲ ਜੀ? खा सकते हैं. आप इनको मिक्स कर सकते हो. जैसे अगर आपने 1 कटोरी जौ का आटा लिया है, आप 1 कटोरी अपना नॉर्मल आटा लेके उसको भी मिक्स कर सकते हो. आप बिना मिक्स किए अलग अलग आटे की रोटी ले सकते हो, और आप 2 या 3 आटे को भी मिक्स कर सकते हो. ਤੇ ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ कोई ਅਸੀਂ साइड ਕੋਈ इफेक्ट नहीं है, बट हाँ कुछ लोगों को सूट नहीं करता, वो बात अलग है. जैसे अगर मेरे को एलर्जी है जौ की, तो मैं वो आटा नहीं खा सकती. कोई एलर्जी है वो बात अलग है, अदरवाइज उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. ਓਕੇ ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਾਣ ਲਈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? बच्चे का एज क्या है? ਬੱਚੇ का है मैम 2 ईयर. नहीं, हम सारी चीजें नहीं दे सकते. जैसे कि बहुत हैवी फूड्स, मसाले वाले फूड्स, ऑब्वियसली वो हम नहीं दे सकते. नॉनवेज, अंडा वगैरह दे सकते हैं 2 साल के बच्चे को. इम्यूनिटी अगर कम है तो आपको जो मैंने अभी ये बताया हल्दी काली मिर्च वाला, वो आप उनको दूध में दीजिए, वो बहुत बेनिफिशियल है. मैम वो दूध में मिलाकर? दूध, बच्चा है तो दूध में दे सकते हैं, अगर दूध अच्छा है, गाय का है, प्रॉपर है, उसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगे, नहीं तो पानी में. ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈरह ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੀ? मैंने अभी कुलदीप एक कॉन्कॉक्शन बताई है, वो रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी फिर से, वो आप पे बना सकते हो. ओके मैम, थैंक यू. सोनिया, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. वो जो मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए आपने बोला कि वाटर्स यूज कर सकते हैं, सिनेमन, लेमन, चिया सीड, बट एक्चुअली जिसको अभी बहुत एसिडिटी है वगैरह, तो उससे वो बूस्ट हो रहे हैं एसिडिस. तो थोड़ा वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीजें, देखो एसिडिटी का भी हमने गट इश्यूज में वैसे करेंगे सोनिया इन डिटेल, बट जस्ट टू लेट यू नो, एसिडिटी के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, एंड हमें वो स्पाइसेस की ड्रिंक्स लेनी है जो एसिडिटी ना करे. जैसे सौंफ का पानी है, सौंफ का पानी इज वेरी गुड फॉर एसिडिटी. नींबू और अदरक का पानी है, वो भी एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा होता है. सो ऑब्वियसली मैंने एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए, एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए बोला है. अब अगर किसी को अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग मेडिकल कंडीशंस हैं, सो हम उन मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से ही उनको वो चीजें सजेस्ट करेंगे. सो दैट वेरीज विद द मेडिकल. तो लेमन और अदरक का पानी जो है वो एसिडिटी बढ़ाता है कि कम करता है? कम करता है. अच्छा, और वो एक पूछना था कि लो कैलोरी डाइट जब लेते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी समझो अभी नहीं है ज्यादा, तो अगर 1 आवर वेट ट्रेनिंग और थोड़ा सा कार्डियो कर लिया तो बैलेंस होगा क्या? See, it really depends कि आपकी कितनी कैलोरी डाइट है, आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हो. So for me it is very difficult to tell you like this कि wherein I don't know body statistics, I don't know कितनी कैलोरी की डाइट लेते हो, I don't know कि एक्सरसाइज की इंटेंसिटी क्या है. So थोड़ा सा मेरे लिए वेग है आंसर देना. ये 100 कैलोरीज की डाइट ली है और सोनिया, दिस वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इन द कमिंग अप क्लास. मंडे ट्यूसडे को जो हमारी क्लास है ना, उसमें आपका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा, वेयर इन वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि हमें किसकी डाइट कितने कैलोरीज की होनी चाहिए, वो हम सीखेंगे. और उसमें हम फिजिकल एक्टिविटी भी कंसीडर करते हैं.
तो जो हाँ, हाँ। आप अभी बता रहे हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो, हम वो भी कंसिडर करते हैं, फिर एक कैलोरी डाइट प्लान करते हैं और फिर वेट गोल के हिसाब से आगे प्रोसीड करते हैं. तो जस्ट वेट फॉर 1 or 2 classes, this will be answered and you will understand this thing. Okay? Okay, ma'am. Thank you. Welcome. Yes, Sadhna, please ask your question. यस मैम, आपने बताया था कि स्टीविया प्लांट डायबिटीज के लिए बेटर ऑप्शन है ना? और जो नेचुरल फ्रूट्स में जैसे आम हो गया, काफी ज्यादा मीठा होता है, या अंगूर हो गए, तो उसके क्या जो उसमें शुगर होता है, क्या वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता है? बढ़ाता है. तो क्या डायबिटिक पेशेंट को हम ये दे सकते हैं, फ्रूट रेकमेंड कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि उनकी शुगर लेवल्स कैसी है, उसके बेसिस पे. अगर तो कंट्रोल्ड है तो कभी कभार दे सकते हैं, अगर कंट्रोल नहीं है तो नहीं दे सकते. स्टीविया भी कभी कभार दे सकते हैं, कंट्रोल्ड है तब, या फिर मैं अगर रेगुलर दे सकते हैं या दे सकते. स्टीविया से ब्लड शुगर लेवल ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है? नहीं. ओके, एंड नेक्स्ट स्टीविया क्वेश्चन. आप कितना लेंगे? अगर आप चाय में स्टीविया डाल रहे हो, आप कितना लोगे? 0.5 ग्राम, 1 ग्राम? नहीं, सपोज मैं जैसे कि कुछ मार्केट के शेक वगैरह आते हैं जिसमें स्टीविया प्लांट से ही उसकी मिठास ली जाती है, और वो काफी मीठा और लगता है पीने में, तो क्या वो हम डेली उनको दे सकते हैं? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सजेस्ट करना है कि डायबिटिक को दे रहे हो तो काफी मीठा नहीं दे सकते हैं. तो अगर मार्केट के शेक आते हैं तो आपको एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी होती है, पुट लेस carbs और put less sugar or stevia into that, then you can give it to them. जैसे कि जो मैं उनको रेकमेंड कर रही हूँ प्रोडक्ट, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टीविया ही है, ना ही वो सुक्रोज फॉर्म में, फ्रक्टोज या कोई भी शुगर फॉर्म में नहीं है, सिर्फ वो स्टीविया ही है, देन उसको हम डेली रेकमेंड कर सकते हैं? साधना, क्या होता है, स्टीविया भी ना एक लिमिटेड अमाउंट में ही सेफ रहती है, बट ठीक है, तो हम पर डे वो वेट के हिसाब से वेरी करता है, बट ऑन एन एवरेज नॉट मोर देन 2 grams in a day. ओके, सो हाँ, तब तक साइड इफेक्ट नहीं है. बट अगर हम उसको हर एक अच्छी चीज अगर हम ओवरडू करने लग जाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट इज, आपने बोला कि जैसे बीपी लो वालों को हम सेंधा नमक रेकमेंड नहीं करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि वो नॉर्मल ले, है ना? अगर सपोज थायराइड पेशेंट भी है एंड उसका बीपी भी लो रहता है, देन व्हाट कैन बी रिकमेंड? सेम, नॉर्मल सॉल्ट. नॉर्मल सॉल्ट. ओके, पहले तो हम लोग वो हाइपोथायराइडिज्म के लिए हम लोग सॉल्ट मिक्स करके बोलते थे कि पिंक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट मिक्स करके, बट अभी अगर बीपी लो है तो आप नॉर्मल सॉल्ट ही लो. जी. और बीपी हाई एंड थायराइड रहे तो लो सोडियम सॉल्ट. लो सोडियम सॉल्ट. ओके, थैंक यू मैम. Okay, so we wind up our class for today here, and I will see you on Monday. There are many questions that are still left. As we proceed with the classes, I am very sure कि आपके काफी ज्यादा doubts clear होते रहेंगे, and I will be clarifying your doubts जब भी हमें classes के time मिलेगा. Okay, thank you all so much. Have a lovely weekend. I'll see you on Monday. टेस्ट आज आपको मिल जाएगा लिंक.